بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں اسامہ اجاز۔ قومی اسمبلی اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیان کے خلاف پیپلز پارٹی نے واک آؤٹ کر دیا۔ نوید قمر نے موقف اختیار کیا۔ حالات جو کہ تو ہیں اس لیے ایوان کا حصہ نہیں بن سکتے، تاہم حکومتی ارکان کے منانے کے بعد وہ واپس آ گئے۔ مریم نواز نے گزشتہ روز تقریب میں کہا تھا پنجاب کے خلاف بات برداشت نہیں کریں گی اور عوام کو کشکول نہیں پکڑنے دیں گی۔ دوسری جانب اسلام آباد نیشنل پریس کلب پر پولیس تشدد اور توڑ پھوڑ کے خلاف صحافیوں نے بھی پریس گیلری سے واک آؤٹ کیا، شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ For ask my supplementary, مجھے آن دا ریکارڈ یہ بات کہنی ہے کہ پچھلے سیشن میں جی ہم نے کچھ ایشوز اٹھائے تھے جس پہ ہم نے احتجاج بھی کیا تھا، واک آؤٹ بھی کیا تھا جی۔ اس کے بعد حکومت نے تو کوشچن کیا آپ کا؟ سر میں آ رہا ہوں اس پہ جی۔ اس کے بعد حکومت نے اپنی طرف سے ایک ٹیم ضرور بھیجی تھی جس کے ساتھ ہمارا ڈائیلاگ ہوا، لیکن آن گراؤنڈ ابھی تک حالات جو ہیں جوں کہ توں ہیں، اور اس ساری بات چیت کا اس کے اوپر کیا ابھی تک اس ساری بات لیٹ می جسٹ فنش دا سینٹینس، اس کے اوپر ساری چیز کا ابھی تک گراؤنڈ پہ کوئی ڈفرنس نہیں آیا جی۔ سو میری گزارش یہ ہے کہ ہم تب تک ہاؤس کا حصہ نہیں بن سکتے اوکے جب تک کہ اس مسئلے کو حل نہ کیا جائے۔ سو ہم آج واک آؤٹ کر رہے ہیں۔ سپلیمنٹری کریں جی اسد کیسر صاحب۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ کے لیے امداد کے لیے جانے والے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی آخری کشتی بھی قبضے میں لے لی، جس پر 6 افراد سوار تھے۔ عرب میڈیا کے مطابق بدھ سے اب تک 43 کشتیوں کو روک کر تقریباً 500 کارکنان کو حراست میں لیا گیا، جن میں سے 200 سے زائد کو صحرائے نقب کی جیل منتقل کیا جا رہا ہے۔ حراست میں لیے گئے افراد میں پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان بھی شامل ہیں، تاہم ان کی جیل منتقلی کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ حماس کے سینئر رہنما نے واضح کیا ہے کہ تنظیم آزادی فلسطینی ریاست کے قیام تک ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ اسرائیل کا غیر مسلح ہونے کا مطالبہ ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی کسی مزاحمتی تحریک نے آزادی سے پہلے ہتھیار نہیں چھوڑے۔ حماس امریکی صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے پر غور کر رہی ہے، جلد باضابطہ موقف کا اعلان کرے گی، تاہم تنظیم کا موقف ہے منصوبہ اسی وقت قابل قبول ہوگا جب اسرائیل فوج مکمل انخلا کرے گی، مستقل جنگ بندی ہو اور بے گھر فلسطینی اپنے گھروں کو لوٹ سکیں۔ اسپین کے مختلف شہروں میں ہزاروں طلبہ نے اسرائیلی بربریت اور غزہ میں نسل کشی کے خلاف کلاس رومز خالی کر کے سڑکوں پر احتجاج کیا۔ بارسلونا سمیت دیگر شہروں میں طلبہ نے اسرائیل مخالف نعرے لگائے، امدادی فلوٹیلا روکنے پر غم و غصے کا اظہار کیا، فلسطین کے حق میں یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے اسرائیلی کاروبار کے بائیکاٹ، غزہ میں جاری قتل عام کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ نوجوان ہمیشہ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ مصطفیٰ آباد کے علاقے اقبال نگر کے قریب مبینہ پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ملزمان ناکے پر فائرنگ کرتے ہوئے اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں سے زخمی ہوئے اور ہسپتال میں دم توڑ گئے، جبکہ دیگر ساتھی موقع سے فرار ہو گئے، جن کی تلاش جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ستھرا پنجاب ویژن کے تحت لاہور میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کی سربراہی میں انتظامیہ اور MCL اسکواڈز نے مختلف علاقوں سے 625 تجاوزات ہٹا کر سامان ضبط کیا اور 2271 غیر قانونی بینرز اور فلیکسز اتار دیے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے ہدایت کی کہ آپریشن روزانہ کی بنیاد پر جاری رہے، تجاوزات دوبارہ قائم نہ ہونے دی جائیں، ٹریفک کی روانی ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ ننکانہ صاحب میں DPO فراز احمد کی زیر نگرانی کھلی کچہری اور حوالگی مال مقدمے کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں 1.5 کروڑ روپے مالک کی برآمدہ مویشی اور موٹر سائیکل اصل مالکان کے حوالے کیے گئے۔ پولیس نے 2 ڈکیٹ گینگز کے 5 ملزمان گرفتار کر کے 53 مویشی، 7 موٹر سائیکل اسلحہ برآمد کیا، جبکہ 27 وارداتوں میں سراغ بھی لگایا۔ شہریوں نے مسروقہ مال واپس ملنے پر پولیس کی کاوشوں کو سراہا۔ دینا کے عابد حسین پیدائشی طور پر معذور ہے، مگر انہوں نے اپنی معذوری کو کبھی کمزوری نہیں بنایا۔ پرائمری تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم حاصل نہ کر پانے کے باوجود عابد حسین نے قلم کو ہاتھ کی بجائے منہ میں پکڑ کر شاعری کا آغاز کیا۔ اسی حوالے سے مزید دیکھتے ہیں میاں ذوالفقار احمد کی یہ رپورٹ۔
दीना के रिहायशी आबिद हुसैन पैदाइशी तौर पर जिस्मानी माजूरी का शिकार हैं, मगर उन्होंने हिम्मत और हौसले से अपनी माजूरी को कमजोरी में बदलने के बजाय मिसाल कायम कर दी। प्राइमरी तक तालीम हासिल करने के बाद वो मजीद तालीम जारी न रख सके, लेकिन कलम को हाथ की बजाय मुंह में पकड़कर शायरी लिखना शुरू की। आबिद हुसैन ने पोठोहारी जुबान में सैकड़ों इशार और आरिफाना कलाम तख्लीक किए हैं। दित्ती लिखन दी जे तू तौफीक रब्बा, दे तौफीक जे तेरी मैं शान लिखां, हरदम याद विच तेरी मैं गुम हो के, कर के दिल दे पूरे अरमान लिखां, रंगा रंग दी मौला तखलीक तेरी, इस गल ते मैनू है मान लिखां, लिखां कुछ ना होर आबद फर्क, तेरी शान दे अंदर बयान लिखां। अपनी महदूदियत के बावजूद उन्होंने साबित किया है कि हिम्मत और जज्बा इंसान को किसी भी रुकावट से आगे बढ़ा सकता है। माशी बदहाली और महंगाई के बायस आबिद हुसैन अपना मजमूए कलाम शाया नहीं करवा सके, जिसका उन्हें शदीद अफसोस है। उन्होंने हुकूमत वक्त और मुतल्लिका इदारों से अपील की है कि जिस्मानी माजूरी के बावजूद फनो अदब से वाबस्ता अफराद को सहूलतें फराहम की जाएं, ताकि वो अपनी फनी सरगर्मियों का सिलसिला जारी रख सकें। आबिद हुसैन की हिम्मत और लगन ने उन्हें मकामी सतह पर पहचान दिलाई है, और वो इस बात की जिंदा मिसाल है कि अगर इरादा मजबूत हो तो माजूरी भी कामयाबी के सफर में रुकावट नहीं बन सकती। आबिद हुसैन की हिम्मत और लगन ने इन्हें मुकामी सतह पर पहचान दिलाई है, और वो इस बात की जिंदा मिसाल है। अगर इरादा मजबूत हो तो माजूरी भी कामयाबी के सफर में रुकावट नहीं बन सकती। ऐसे बासलाहियत माजूर को अगर हुकूमत की सरपरस्ती और तवज्जो हासिल हो तो माशरे में बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कैमरामैन उस्मान अली के साथ मियां जुल्फ़कार अहमद, स्पेशल न्यूज़, दीना, जेहलम। नूरवाला की बस्ती में सैलाब मुतासिरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बस्ती के 90% घर मुनहदम, जबकि बाकी मकानात भी नाकाबिले रहाइश हो चुके। मुतासिरीन ने शिकायत की कि उन्हें ना राशन मिला। खेमे और सर्दियों की आमद के पेश नजर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फौरी इमदाद, राशन और खेमों की फराहमी का मुतालबा करते हैं। बुरेवाला में पाकिस्तान गर्ल गाइड एसोसिएशन और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल की जानिब से सैलाब मुतासिरीन में खुश्क राशन, अद्वियात और मलबूसात तकसीम किए गए। प्रिंसिपल, असातिज़ा, तालिबात ने कहा कि ये उनका इखलाकी और कौमी फरीजा है। मुखय्यर हज़रात को भी मुतासिरीन की मदद के लिए आगे आना चाहिए। रोजमर्रा तालीम हासिल करके बच्चों में बेचैनी पैदा हो जाती है। बच्चों की इसी बोरियत को दूर करने का एक बेहतरीन तरीका उनकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज करवाना है। इसी हवाले से मजीद देखते हैं शहबाज अहमद की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर कसूर की एक निजी स्कूल के अंदर, जहाँ पर जुम्मतुल मुबारक के दिन बच्चों को जो है वो इस्लामी तालीमात और आदाब के साथ साथ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं। इनका मकसद जो है वो बच्चों के अंदर शख्सियत के अंदर निखार पैदा करना होता है, और इनके पीछे क्या वजह है, ये एक्टिविटीज़ क्यों ज़रूरी हैं, इस हवाले से बात करते हैं स्कूल के प्रिंसिपल साहब के साथ। उनसे पूछते हैं कि वो बच्चों को क्या क्या एक्टिविटीज़ करवाते हैं और इनके पीछे इनका मकसद क्या होता है। जी सर, बताइएगा कि आप बच्चों को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाते हैं, उनको कैसे रिफ़्रेश करते हैं, और इस हवाले से आपका क्या कहना है। जी, मैं समझता हूँ कि बच्चे स्टडी कर कर के ना बोर हो जाते हैं, तो बच्चों की बोरियत को दूर करने के लिए हमने स्पेशली फ्राइडे का दिन बच्चों के लिए जो है ना वो हमने मुख्तस किया हुआ है, जिसमें बच्चे मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं ताकि वो जो है ना एक्टिव हो सकें, और पूरा हफ़्ता उनको इंतज़ार रहता है कि फ़्राइडे का दिन आना है तो हमने फ़लाँ जो है ना एक्टिविटीज़ करनी है। तो इस वजह से करते हैं ताकि बच्चा जो है यहाँ से एक अच्छा शहरी बन के निकल सके। जी, जैसा कि आपने सर की बात सुनी, उनका यही कहना था कि एक्टिविटीज़ का मकसद बेसिकली बच्चों की शख्सियत के अंदर निखार पैदा करना होता है और बच्चों के अंदर छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करना होता है। जी, लाहौर के इलाके मिस्री शाह में पुलिस ने पतंगे तैयार करके बैरून मुल्क फरोख्त करने वाले मुलजिम अरशद को फैक्ट्री पर छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 2500 तैयार पतंगे, लाखों रुपए मालिक का खाम माल बरामद हुआ, जबकि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एसपी सिटी बिलाल अहमद ने कार्रवाई पर एसएचओ टीम को शाबाश देते हुए कहा, पतंग साजी फरोशी के खिलाफ सख्त निगरानी जारी रहेगी। लाहौर पुलिस ने जुम्मतुल मुबारक के मौके पर सर्च ऑपरेशन जारी रखते हुए रवा साल अब तक 8,904 ऑपरेशन किए, जिनमें 3 लाख से जायद घरों, 1,32,000 किराएदारों, 9,62,000 से जायद अफराद को चेक किया गया। तर्जुमान के मुताबिक 1,229 इश्तिहारी मुजरिमान समेत हजारों अफराद गिरफ्तार हुए। मंशियात और नाजायज असलह के मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि होटल, हॉस्टल, बस अड्डे और दुकानें भी चेक की गईं। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने कहा, शहर को अमन का गहवारा बनाने के लिए कार्रवाइयां 24 घंटे जारी रहेंगी। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ऑपरेशन अपनाया जा रहा है।
वज़ीर आला पंजाब के अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत सूबे में 1 लाख मुस्तहिक खानदानों को घरों की फ्राहमी हतमी मराहिल में दाखिल हो गई है। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन के मुताबिक अब तक 87,000 से ज्यादा खानदानों को बिला सूद कर्ज दिए जा चुके हैं। 13,000 मजीद को रवा माह अदायगी होगी, जबकि 19,000 से ज्यादा घर मुकम्मल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अरबों रुपए के बिला सूद कर्जों से घरों की तामीर मुल्की तारीख का इनकलाबी कदम है। मेहराबपुर में सिंध एम्प्लॉयज अलायंस की कॉल पर सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज 10वें रोज भी जारी रहा। हाई स्कूल से निकाली गई रैली जनाब चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। मुजाहिरीन ने DRA पेंशन, सन कोटा अलाउंस और दीगर सहूलियात में गैर कानूनी कटौतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फौरी बहाली का मुतालबा किया। रानीपुर में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पर पुलिस गर्दी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें मुकामी सहाफियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने पुलिस कार्रवाई को आजाद सहाफत पर हमला करार देते हुए जिम्मेदारान अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। गोटकी के गांव करीम बख्श ओबड़ू में 4 साल कबल पसंद की शादी करने वाली आसिया सैलरू राशिद आबड़ू के मामले पर वालिदा की जानिब से कत्ल का इल्जाम आयद किया गया। ताहम पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश किया। अदालत ने बयानात सुनने के बाद सख्त सिक्योरिटी में आसिया को शोहर के साथ जाने की इजाजत दे दी। जी नाज़रीन, आज जैसे कि मौजूद हैं गोटकी के करीब थाना हदूद ए सेक्शन में, जहां 4 साल पहले एक जोड़ा का शादी हुआ था, जो कि एक दूसरे के खाला के बेटी और बेटे। आइए जानते हैं कि आज उनके साथ दोबारा उनको अदालत सगोर जो है पेश करने का हुक्म दिया है। ए सेक्शन थाना हदूद की पुलिस जो है अपनी फुल नफरी के साथ और फुल सिक्योरिटी के साथ उनको आज जो है ना अदालत सगोर में पेश करने के लिए जा रहे हैं। आइए जानते हैं उन बच्ची से। जी बाबा बाबा असां मसलो इहो आहे, रोज़ जेको आहे धमकियूं ॾियनि था, रोज़ केस था करनि कूड़ा असां ते। मूंखे चवनि था जो फ़ैसिलो ई न आहे थियल, चवनि था त असांजी छोकिरी 2 महीना अॻु में रही वई आहे हिते अची, हाणे असांखे नथा छॾनि छोकिरी जे, ईअं था चवनि, कूड़ा रुगो केस करनि था। अच्छा न नया वई पे कनि, जॾहिं फ़ैसिलो ई ठाहे चला वेंदमि वरी। तव्हांजो पाण में शादी कयो, तव्हांजो पाण में रिश्तो छा आहे बाबा? असां पाण में तव्हां पाण में सका मासात आहियो। तव्हांखे अदालत सगोरी घुरायो त कहिड़े हुकुम तहत घुरायो अथसि? हुकुम इन खां घुरायो अथसि असांखे पेश पियो आहे, जज जे जेको आहे उहे आया आहिनि, कूड़ा रुगो केस करंदा। मां पंहिंजे मुड़ुस सां ख़ुशि आहियां, मां उन्हनि जी असुल ई न थींदमि। महर में बदअमनी के खिलाफ एहतजाजी धरने में SUP रहनुमाओं, ताजरों, सहाफियों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए जाने पर सिंध यूनाइटेड पार्टी आबादगार इत्तेहाद की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने शहर में रैली निकाली, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और मुतालबा किया कि झूठे मुकदमात फौरी वापस लिए जाएं, वरना भरपूर तहरीक चलाई जाएगी। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।